चलिए, अभी तक हमारा जो था हम लोग फॉरगिवनेस का प्रेयर्स कर रहे थे। ठीक है, जिसमें बॉडी का हो गया हमारा कि बॉडी किस तरीके बॉडी फॉरगिवनेस हो चुका है और स्ट्रेस रिलीफ को लेकर हो गया है। अभी हम लोग अपना इमोशनल और मेंटल पे करेंगे आज। ठीक है, सो होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। बैक स्ट्रेट, स्पेक्सेस रिमूव कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. नाक से सांस लेते हुए और मुंह से सांसों को छोड़ते हुए। Inhale and exhale. And exhale. Inhale and exhale. इमेजिन करेंगे कि आपके आसपास गोल्डन लाइट है और आप जब इनहेल कर रहे हैं तो गोल्डन लाइट को इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को एक्सहेल कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स अभी आपके माइंड में चल रहे हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन रिलीज कर देंगे। फोकस अपना पैरों के पास रखेंगे। इमेजिन करेंगे कि डीप रूट्स आपके पैरों के तलों से नीचे निकल रही है और धीरे धीरे मदर अर्थ के कोर तक जा पहुंची। एक्वामरीन क्रिस्टल को आपकी रूट्स चारों तरफ से रैप कर रही हैं। अर्थ ड्रैगन्स एक्वामरीन क्रिस्टल की रूट्स को हील कर रहा है और आपकी एनर्जी को ग्राउंड कर रहा है। You can feel the sensation around your feet. मैं इन्वोक करना चाहूंगी आपको
Michael, please place your protection light around us. Create a cocoon of light. Release all kind of lower and negative energies from my aura. Cover my aura. That love can enter into. Focus on your crown chakra. क्राउन चक्रा पर फोकस करेंगे. इमेजिन करेंगे आप इन जन शामियों की पिंक लाइट को जब शामियों की पिंक लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर रही है. थर्ड आई से आपके थ्रोट, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा में प्रवेश कर चुकी है. और धीरे धीरे पूरी बॉडी में पिंक लाइट ऊपर से नीचे मूव कर रही है. आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी से या फॉग बाहर की तरफ निकल रही है. Love is flowing into your body. You can feel the sensation in your body. Releasing all kind of lower negative dense energies from your body. इन जो शामियों की पिंक लाइट आपके ब्लड वेन्स एवरी सेल के अंदर मूव कर रही है ऊपर से नीचे और सेल्यूलर लेवल तक डीप क्लींजिंग आपके बॉडी की कर रही है. आपका माइंड, बॉडी एंड सोल रिलैक्स हो चुका है, अलाइन हो रहा है. सोल लेवल तक हीलिंग आप फील कर सकते हैं.
आज हम अपने इमोशनल और मेंटल थॉट्स को क्लियर करेंगे। हम अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस की वजह से भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, जिसे आज हम क्लियर करेंगे फॉर आवर हाईएस्ट गुड। I request Archangel Shamya, please clean our thoughts, clean our emotions, release all kind of negative thoughts, hatred, jealousy, overthinking, anxiety, tension, stress. Heal our heart and third eye chakra. Place your hand on heart chakra and say to your emotions which are not serving you right now, and release them with the open of prayer. Thank you, my emotions, for serving me. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Please release unwanted negative thoughts. जिस भी पर्सन सिचुएशन के लिए अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, या जिस सिचुएशन में आप हो, प्लीज रिलीज by saying thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Place your hands on your crown, third eye chakra, and say to your thoughts that thank you so much. You served me a lot, but just I want to release and let go these negative and unwanted thoughts by saying thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry,
Please forgive me. Place your hands in receiving position. You can feel the energy shift in your body. Relax your mind. Now your body, mind, and soul are so aligned. I love you. I'm sorry. Say to your soul, thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं विद आवर फूड वाटर. हम अपने माइंड को फीड करते हैं विद नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट. हम अपने हार्ट को फीड करते हैं विद लव, कंपैशन, हेट्रेड, जेलसी. लेकिन हम अपनी सोल को फीड करना भूल जाते हैं. दिस इज द टाइम when you are feeding your soul. Say thank you to your soul. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Be in this energy for 1 minute. आपकी वाइब्रेशंस अप हो रही है, आपकी बॉडी लाइट है. अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई पेन, इचिंग या कोई डिजीज है, प्लीज रिसीव दिस हीलिंग ऑन दैट एरिया. Release that pain with love. Release that disease with love. वो पेन, वो डिजीज हमें लाइफ में कुछ लेसन्स लर्न करवाते हैं. So learn your lesson and let go that disease.
Feeling is complete. Come back to your conscious, subconscious mindset. Move your hands and feet. Place your hands in Namaskar Mudra. We say thank you to Mother Earth, Lady Gaia, and Electromarine crystals and Earth dragons. Thank you. Thank you, Fire dragons. Thank you, Archangel Michael. I request Archangel Michael, please place a protection light on everyone for 24 hours. Thank you, Archangel Michael, Archangel Swami. Thank you. All the universal beings, thank you, my guardian angels, my dragon guides, my masters, my teachers, thank you. Thank you, my guru, my teachers, thank you, my mentors, thank you, my parents, thank you, my ancestors, thank you, every family member, and thank you, all of you. Thank you. Rub your palm and place it over your face. Open your eyes. कैसा लग रहा है? सोल लेवल तक आपकी हीलिंग होगी, अलाइंड लग रहा है अपना, मतलब रिलैक्स लग रही है बॉडी। कभी सोचा था कि अपनी सोल को भी फीड करना होता है हमको, हम अपने बॉडी माइंड एंड हार्ट को फीड करते हैं, सिर्फ सोल को नहीं करते। जो ये हम मेडिटेशन करते हैं, ये एक्चुअली हम अपनी सोल को फीड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो ये अभी जो आप 21 डेज कर रहे हो, इट मीन्स कि अब आपकी सोल इतने टाइम से कहीं ना कहीं वो भूखी थी, जहाँ पे उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, आपने फीड नहीं किया, बट आज आप अभी आप उसको फीड कर रहे हो। सो मेडिटेशन भी बहुत जरूरी होती है लाइफ के लिए, चाहे फिर वो सिर्फ आप 10 मिनट क्यों ना करो, क्योंकि आपकी सोल को भी रिलैक्स होना होता है। सर भारी लग रहा है नीता जी, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट जाओ, पानी पियो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, और रिलीज होता है ये सारी चीजें। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं देखो आपका क्राउन चक्रा ना ब्लॉक्ड है। वो चीज आप फील करते होगे जब आप रीडिंग्स करते होगे, कई बार आप ब्लैंक हो जाते होगे, होता है ऐसा? नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, बट ये क्राउन चक्रा ना ओपन होता है जब सिर में पेन होता है ना, तो ये अभी आप देखोगे ना और ज्यादा आपकी रीडिंग्स अच्छी होंगी। ठीक है, सो ये होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा लग, दवाई मत लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लो। ठीक है, और ये थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा, एनर्जी रिलीज हो गई, बस और कुछ नहीं। यस मैम, जब भी करती हूँ आईज और लेग्स हैवी लगती हैं। सो आईज और लेग्स में आकांक्षा बहुत हैवी वो होगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज होती है। यस मैम, आई कुड फील द ऑसम एनर्जी टुडे, आई वॉक्ड इन द ग्रास इन द गार्डन एंड डूइंग मेडिटेशन। ग्रेट। आपकी वो भी हो गई, ग्राउंडिंग भी हो गई। जिस अगर लग रहा है वॉमिट जैसा, कर लो, अच्छी बात है, ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, कुछ और नहीं है। ठीक है, सो मैं तो अभी भी फॉरगिव, क्योंकि होता है ना कि अब अभी तो ऐसा हो गया है कि फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो ना, तो समझ नहीं आता किस किस के लिए करो, क्योंकि बचपन में भी कई बार होता है ना, स्कूल में भी आपने किसी को कुछ कहा होता है। ठीक है, मुझे याद है, मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने ऐसे एंजल्स के साथ ऐसे बात कर रही थी, तो उसमें मेरे पास आया कि आशा के साथ फॉरगिवनेस प्रेयर करो। मैं सोच रही हूँ, मैं कहा आशा कौन है? मैं कहा मुझे तो, मैं तो जानती नहीं कौन है, मैंने किस आशा को हर्ट किया है। मेरे क्लास में ना एक मतलब कम हाइट की लड़की थी, तो हम लोग ना बचपन में उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मेरे को धीरे धीरे ना मैं अपना बैक में जाने लगी कि कौन आशा। फिर मेडिटेशन करते करते ही मैं अपना बैक में गई, तो मुझे फिर याद आया, फिर मुझे उसकी शक्ल याद आई, जिसको शायद मैंने, मुझे लग रहा है 15-15 साल से कुछ देखा भी नहीं है। 2008 में मेरा 12th मैंने पास आउट किया था, 2008 के बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। ठीक है, सो सोचो 2008 से अभी 2024 चल रहा है, और अभी मेरे को आ रहा है कि मतलब उसके साथ फॉरगिवनेस करो।
तो वो जब भी मैं फॉरगिवनेस करती हूँ तो हम वो क्या, कहीं ना कहीं मेरा थ्रोट अभी भी ब्लॉक हो जाता है, अभी भी कई बार मेरे को इतना ब्लॉक हो जाता है कि मेरे को वॉमिट भी हो जाती है। अभी टचवुड अभी कुछ दिन से तो नहीं हो रही है, बट हो जाता है, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट मेरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सो ये कोई ऐसा नहीं है, वॉमिट अगर आ रही है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें ना रिलीज कर रहे हो। हीलिंग देखो आसान नहीं होती। सबको लगता है कि यार हीलिंग, कई लोग बोलते हैं ना हीलिंग करते हैं यार एक अच्छी फीलिंग होती है, मेडिटेशन में जाते हैं, मतलब कई लोगों के मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं कि आप ट्रांस में चले जाते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो इस तरीके से कह रहा है ना इट मीन्स वो हीलिंग सही से कर नहीं रहा है। हीलिंग इज वेरी अनकंफर्टेबल। जब आपकी हीलिंग होती है आप लाइफ में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। जिसकी हीलिंग होती है, मुझे याद है, मैं अपने बेटे की हीलिंग मैं खुद नहीं करती, मैंने किसी से करवाई थी एक टाइम पे। उसका ना हार्ट चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक था मेरे बेटे का। उसने मतलब एक होता है ना कि जैसे ही उसकी हीलिंग स्टार्ट हुई, स्कूल से कंप्लेंट आनी स्टार्ट हो गई, हर दूसरे दिन मेरे को स्कूल में बुलाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद घर में उसका वो चिड़चिड़ापन निकलने लगा, लड़ाई झगड़ा, मतलब एक होता है ना बदतमीजी से बात करने लगा घर में, जबकि वो कभी ऐसे करता नहीं है, बट बदतमीजी से बात करना उसने स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, अभी बच्चे के हिसाब से वो कैसे निकलेगी, वो इस तरीके से वो इरिटेशन और निकल रही थी ना उसकी सारी बात। तो कई बार जब हीलिंग होती है ना तो सामने वाला इंसान बहुत इरिटेट भी हो जाता है। तो हीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल पार्ट है। ये तो मैं बहुत नॉर्मल लेवल पे आपको हीलिंग करा रही हूँ, आप लोग को फील नहीं हो रहा। मेरे साथ तो अभी ऐसा भी हुआ है, और पर ज्यादा दिन नहीं, थर्सडे को हुआ है। मैं बैठ नहीं, 1 घंटे की हमारी टीचर ने मेडिटेशन करवाई, मैं बैठ नहीं पा रही थी उस मेडिटेशन में, मुझे ऐसा लग रहा था कब मैं आंखें खोल दूं अपनी। इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, पूरा शरीर ऐसे ऐसे मेरा मूव कर रहा है, बस मैं यूं कर रही हूँ यूं कर रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि डीपर लेवल तक हमारी जो हीलिंग होती है वो सेल्युलर लेवल तक होती है, हमारे डीएनए तक में होती है। डीएनए आपका आपके एंसेस्टर से कितना पुराना आपको मिला हुआ है, आपके एंसेस्टर्स ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, जो आपके डीएनए भी स्टोर है। उस लेवल तक तो हम जा भी नहीं रहे। तो जब ये 1 to 1 हीलिंग होती है ना तब हम उस लेवल तक मैं जाती हूँ, या फिर पेड हीलिंग्स होती हैं जिसमें हम लोग करते हैं। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है हीलिंग का पार्ट। अगर आपको लग रहा है हीलिंग इज इजी, नॉट इजी। ठीक है, हीलिंग में आपको आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो ये तो बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं है। मैं तो इतना अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कई बार जब हीलिंग होती है ना, रात को सोती हूँ, कई बार तो एक सुबह उठ के बस बच्चे को खाना देके तैयार करके स्कूल भेजा, उसके बाद जो सोई हूँ 1:30 2 बजे कभी ऐसे उठती हूँ सो के। सो हीलिंग मतलब अभी आप सोचो अपने पास्ट कर्मा, आपके एंसेस्टर्स के कर्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप रिलीज करते हो और कोशिश करते हो। मेरी कोशिश तो ये रहती है, क्योंकि अब भी आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना ये आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर पास ऑन कर रहे हो। तो आप ये हील, हम लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ अपने आप ही, आप यहाँ बैठे हो ना, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, आपके ब्लड रिलेशन में जितने लोग हैं सब हील हो रहे हैं इस हीलिंग से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्टेड हैं, हमारा डीएनए उनसे कनेक्टेड है। आप अपनी जर्नी में जिस दिन आगे बढ़ना शुरू करोगे आप देखोगे, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, मेरे घर में सोचो मेरी जहाँ बात डिवोर्स तक पहुंच रही थी, आज मैं उन्हीं लोगों के बीच में वहीं रह रही हूँ। अब क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज कर रही हूँ, मैं जिस एरिया में बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ वो वाइब्रेट हो रहा है ना एरिया, और वो वाइब्रेशंस पूरे, इवन कहते हैं कि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप हीलिंग करते हो, आपके पड़ोसियों तक को बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आपके घर की वाइब्रेशंस रेज होती हैं, और धीरे धीरे वो घर की वाइब्रेशंस जो है आपके पड़ोसियों के घरों तक भी वो इम्पैक्ट करती है, आपके पड़ोसी भी हील होते हैं। सो ये आप सिर्फ हीलिंग अगर आप अपनी कर रहे हो ना, आप अपना बेनिफिट नहीं कर रहे बल्कि आप बहुत सारे लोगों का भी बेनिफिट कर रहे हो जो आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अपने एंसेस्टर्स को भी हील कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे। अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन जो है उनकी तरफ वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो पास ऑन होने से आप रोक रहे हो। अभी खैर मैं इतना, थोड़ा ये डीप कन्वर्सेशन है, इस टॉपिक के लिए आपको थोड़ा और आपका माइंड सेट होना चाहिए। सो आई होप थोड़ा बहुत आप सीख अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि क्या है हीलिंग। हीलिंग इज नॉट इजी पार्ट। ठीक है, और आप हील कर रहे हो तो यह समझ लो कि आप अपने पूरे परिवार को हील कर रहे हो। कई बार आप देखोगे जब आपकी हीलिंग होती है ना आपका परिवार भी अनकंफर्टेबल होने लगता है।
मैंने जब स्टार्टिंग में हीलिंग स्टार्ट करी थी, मेरे मेरे भाइयों तक को, मतलब वो मेरे भाइयों तक से मेरी लड़ाई हो गई। और वो लड़ाई इसलिए नहीं हो रही थी कि मतलब वो हील हो रही थी कहीं ना कहीं चीजें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी जब रिलीज होती है वो आपको इजीली छोड़ेगी तो नहीं ना। नेगेटिव एनर्जी आपको डराएगी, आपको बुरे सपने भी आएंगे। अभी तो नहीं आ रहे होंगे शायद, किसी किसी को आ भी रहे हो, पता नहीं मुझे, बट अभी तक आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बताया नहीं मुझे। बट अगर आप डीपर लेवल तक करते हैं ना, बुरे सपने भी आते हैं। और मैंने आपका अपना एक्सपीरियंस शायद आप लोग के साथ शेयर भी किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लगा था किसी ने मेरे को बांध ही दिया है, और मेरी मतलब कह रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा टाइम हो गया, चलो अभी हमारे साथ। ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। ठीक है, बट डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज इजीली, आप देखो कोई अगर आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान है, ठीक है, नेगेटिव इंसान है जो आपको हर दिन टॉर्चर करता है, आप उसको बोलोगे चला जाओ, और वो क्या चला जाएगा? परेशान करेगा ना आपको, इजीली तो नहीं छोड़ेगा। सपोज अगर जैसे कईयों का डिवोर्स होता है, बहुत बुरा रिलेशनशिप है, डिवोर्स होता है, इजी होता है क्या? बस आज पेपर पे साइन कर दिया, हो गया डिवोर्स। सालों लग जाते हैं। तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी, अभी आप नेगेटिव एनर्जी से डिवोर्स ले रहे हो, समझ लो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग लेट हो रहे होगे, आप लोग ऑफिस भी जाना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कभी और इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।